It's more or less a walk and talk with Vatsal. Vatsal, what is your impressions about Khalsa College? Having spent your schooling at Don Bosco, Khalsa College as a growing up child at Don Bosco, when you used to see face to face the college. इस लम्हे से आप हटे तो पाश की बात करो ना। लम्हा इतना जिंदा है, इसको जी लेना ही कुछ है। कौन देखता है अपनी जिंदगी इस वक्त इस क्षण यहाँ पर से बातें कर रही बच्चों की नजरों से हमें कुछ कह नहीं रही है। हम अपने अतीत के पास्ट के जो डस्टबिन से मुक्त हों तब जाके कहीं पर कुछ स्वच्छ साफ कुछ नया घटेगा, क्योंकि जो ऊर्जा यहाँ पर इनकी आंखों में मुझे महसूस होती है वो अपने आप में ही एक सबूत है कि जिंदगी पे कभी फुल स्टॉप लगता है। This is a flowing stream. It's a stream. As I stand here, there were heroes that existed before me. There are unborn heroes which will talk tomorrow after me. At this moment, I am just hearing and living this moment. ये अपने आप में ही एक चमत्कार है। This is a gift that we are living. इस चमत्कार को लगता है। I keep wondering. Many of my students also keep asking me as to what is Vatsal's impression about fear. What is fear, and how do we? In fact, we saw the play wherein he is overcoming depression. Of course, there was a lady love in his life, the lady in white who came and changed his perspective about life. What is your impressions about fear? Fear is a reality which you have to understand. You जिस तरह आप अपनी परछाई से मुक्त नहीं हो सकते, fear will always be a part of you. Any living organism has fear. That survival fear mechanism is hardwired in the human species, in the living species. That's the survival instinct in that. But courage is having fear and still doing things. ऐसा नहीं कि हमें डर नहीं लगता है था या डर नहीं लगता है, उसके बावजूद हम निकलते हैं, करते हैं, हारते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलते हैं। That's the way the human evolution, that's the way the life journey is towards its own fulfillment. And there is no full stop, there is no horizon. You can't sum up. मेरे जो last discourse जो UG Krishnamurti जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एक तो वो it would be a tragedy if you call him a guru, because that would defeat. My singular purpose is not to give him the status of a god. I would rather call him a fraud than a god, because he refused to join that bandwagon. He said, "Let me be erased from the sands of time." His last words to me was, "I don't want to be remembered." और हमारा जो cultural जो एक pursuit होता है, we do everything to be remembered. We do everything to be remembered. तो वो शख्स जो है उसकी ज़हनियत का अंदाज़ा शायद आपको इस वक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम अपने स्कूल्स में, अपने पाठशालाओं में, अपने कॉलेजेस में सिखाते बच्चों को कि they must become figures to be remembered and revered. I can sum up everything on entry when I came. My success was instinctively to step onto my own rangoli and erase. That was what leapt out of my body, because I feel I don't want to burden these children with my non-existent greatness. I'm a fumbling, stumbling person. I have no greatness of my own.
I'm an ordinary, simple person. I have fallen down, I've gotten up. I have learned through trial and error. I have failed more times than succeeded. I have failed my way to success. So don't be frightened of failure. If a mediocre, ordinary person like me can make it, where someday you give me a tribute like this, I assure each child here, each one of you can do it. Never was a child like you before. Never will there be a child like you again. You need basic skills, because that's the language, वो ज़बान है. हमको एक दूसरे से ज़बान की ज़रूरत नहीं पड़ती, खामोशी में ज़्यादा बात कम्युनिकेट होती है. Ultimately, please own up yourself. On your DNA, when you were born, you were gifted with everything that life has in its treasure box. Don't let the schools and institutions erase that. That's why I say, institutions polish pebbles and dim diamonds. Don't be a dim diamond. Don't let the teachers take away your shine. I remember I was telling my writer friend Sunita when I came here, this is सामने Don Bosco एक स्कूल है, जहाँ पे मुझे निकाल दिया था उन्होंने. और मैं said कि Mahesh, people come to the school to learn something, to get knowledge. But you know everything, so why should you come? So the impertinent me said, yes father, I think why should I come? And he was very angry and he threw me out. But it's taken me so many years to know that I don't know anything. That's why the journey is to arrive at that point to know that you will never be able to capture life in phrases, in words. इसलिए अलग-अलग नजरिए से जिंदगी को देखना पड़ता है. And उसके बावजूद कुछ हाथ आता ही नहीं. Great Dharat Kumar जिनका आप जिक्र कर रहे हैं. I was interviewing him in Bradford, and I asked him. I said, Mr. Yusuf Khan, what it has been for you to play Dharat Kumar in this lifetime? तो उन्होंने पीछे एक बहुत बड़ा स्लाइड लगाया था. उनकी देवदास की तस्वीर थी, बहुत खूबसूरत. तो बैठे थे, उन्होंने ऐसा देखा हुआ, उससे आप उनकी हटी नहीं चाहिए. उन्होंने कहा कि exhilarating, mesmerizing, frustrating, यार कुछ हाथ में आया ही नहीं, कुछ बात समझ में आई ही नहीं. परसों मैं अपने सीनियर कलीग सलीम खान साहब के साथ था, तो उन्होंने अशोक कुमार जी का जिक्र किया. अशोक कुमार जी भी कहते थे क्या कहाँ से आए हैं, क्या किया, कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ आया ही नहीं. Life is a mystery. Let us leave it unexplained. Life doesn't want a meaning. Life needs an experience. We all will try and capture it and say कि my meaning is the only meaning. बराबरी पता क्या होती है? बराबरी जो आप समझा रहे थे बच्चों के अलग-अलग ज़बान से, is to know that my view is as important as your view. And this country, this great country, had that space. कि भैया मेरे नजरिए से जिंदगी जो है ये हाथी को अगर आप पूछ समझ लें कि क्या वो हाथी के पर इंसाफ होगा, नहीं. अगर आप उसको सिर्फ सूंडी है, कोई हाथी को की पूंछ पकड़ता है, हाथी बोलता है ये पूंछ है, कोई उसकी सूंड पकड़ता है बोलता सूंड है. तो एक व्यक्ति है जो पूरे हाथी को देख रहा है, उसका नजरिया अलग है, वो पूरा हाथी हम देख नहीं पाते. हमारी जिंदगी का तलिया आती है, we do not understand. That's why the great Guru Nanak Ji, there was a moment that I read from there, कि he was sitting inside and the people came to Guru Nanak Ji, they have come to meet you. He says, I don't want to come. They keep on asking me to explain about him. मेरी क्या औकात है, मैं क्या हूँ कि मैं उसको describe करूँ लफ्जों में. And then he gave the analogy of कि क्या आपने अगर खुद पता नहीं है तो मैं समझा पाऊंगा कि खुद क्या है. Great gurus
saying that we can't tie up life in words. शब्दों में या images में एक व्यक्ति की क्या औकात है कि इतनी बड़ी ये जो रहस्य है, जो सदियों से जो है, sages have come, will keep on coming and going, but the mystery of life will continue, and that is the way it should be. And today, I think let us dedicate this moment to that thought that each one of us will experience life. Wow. Each one of us will have a moment where you will try to sum up life and say, okay, this is it. Pause. That is not it. जो शब्दों में बंध जाए वो जिंदगी नहीं है. आसमान वो नहीं जहाँ पर आप लकीर ड्रॉ कर सकते हैं. It is endless. So I think that is what the children of your college exude in me. I'm inhaling their vitality. Oh, they are like a flowing. This is the Gangotri. This is what it is. कुछ नहीं ऐसी देख रहे मुझे. देखते रहते हैं. Let's look at each other. Like your inspirer. My last 8 days with Mr. Vijay Krishnamurthy, who spent 30 years with me, was wordless. There was no conversation. लफ्जों से गहराई जो है कम्युनिकेट हो ही नहीं सकती. Try it just for 2 seconds. Be quiet. Why destroy this beauty with words? I have no hesitation in saying that I know one thing that I don't know. That's why I'm willing to listen to my children when they talk to me. I listen to them, they teach me. The elders, the teachers need to learn a lot from the students. The age that we live in, the educator needs to be educated. The observer is the observer. The world is in a mess because of the education that we have given to the children. We'll have to own up the mess. We have created this mess for them. They have to clean it up. We are responsible for this. So I was asking the great Dalai Lama, all the stories that we were told have not helped us to keep man together. No corner of the human globe, the world, is left where man is not bled, or being attacked by his own brother. Huh? So is there a glue? Is there a story that will hold mankind together? The idea of India that you keep on talking about so vehemently, you just keep on re-emphasizing, is itself under fire. We, in this age of communication, have never been so divided. What is the solution? The solution is first own up that we are divided. पहले मानो तो सही बीमारी है. आप मानेंगे नहीं. You're talking about what did Guru Nanak Ji say? Living the truth is more important than truth. Please walk your talk. Don't tell your children what you don't do. When I was a little boy, I used to see the teachers don't live what they say. Parents don't live what they say. What was very heartening for me to hear from your mouth, sir, was when I entered, you said, that's a moment that will remain etched in your mind. Why? Not because of the performance. I live my word. Yes. Live your word. Live your word. Live your word. Tari and my friendship is not just words. It endures on living those words. So I think that's all. And you don't require to be a very intelligent person to live our word.
सिनेमा तो ये सीख ही लेंगे हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बेहतर बनाएंगे। I think the stunning imagery of Sadak 1.5. Oh goodness. It's very good, very good, very good. 2-3 minutes. Sukhveer. Sukhveer आया। Sukhveer. अब तू बोल, मैं बहुत बोल गया। There's a moment I must talk about before I. There was a great moment in the life of Sri Ramakrishna Paramahansa and Vivekananda. Sri Ramakrishna Paramahansa was the great sage of West Bengal, and Vivekananda ji was his supposed disciple. So, and Ramakrishna ji was a great bhakt of Madhurga, Kali. But he, unfortunately, towards the end of his life, got cancer of the throat. So once Vivek was watching his lunch सब खाए थे और उनके जो गुरु जैसे वो बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते थे couldn't eat, तो बहुत नाराज हुए उसको महसूस करके उन्होंने कहा कि ये क्या है, माँ आप करते रहते हैं और ये है फल मिलना आपको कि ये देखिए फाइनली हुआ क्या कि हम खा रहे हैं और आप कैंसर से मैं जैसे सफर कर रहे हैं। तो उनके गुस्से को उन्होंने महसूस किया और कहा ठीक बोला तू बेटा, मैं पूछता हूँ माँ से। तो दूसरे दिन वो मुस्कुराते हुए आए और फिर विवेक के पास गए। उन्होंने कहा कि मैंने बात की माँ जी, और माँ ने कहा कि बेटा बहुत पी लिया अपने गले से, बहुत खा लिया, अब तू विवेक के मुंह से गले से पी, उसके मुंह से खा, तो तू खा बेटा, मैं तेरे को देखता हूँ। बहुत बोल लिया हम, अब इनके मुंह से बोलेंगे। थैंक यू जो आप आए और हमें मौका मिला कि आपके सामने परफॉर्म करें। और कि जो हमने सड़क 1.5 किया था, एक्चुअली इट वाज आइडिया कि हम डिप्रेशन को शोकेस करें। बिकॉज इन द फर्स्ट पार्ट जो संजय दत्त का कैरेक्टर था वो भी डिप्रेस दिखाया गया था। एंड कहीं पे हमने रिसर्च से पढ़ा है कि सड़क 2 भी डिप्रेशन से रिलेट करती है। So made a point to make Sadak on the basic structure of depression. तो जो स्क्रिप्ट थी वो मैंने लिखी है, बट इट वाज लाइक आइडियाज, ओरिजिनल तो कोई होता नहीं है, तो मैंने लिखा है। स्क्रिप्ट पे 4 चांद लगाने का काम अभिषेक पुरोहित का था। और बाकी पूरा टीम को मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि सक्सेसफुल हुआ है ये पूरा सर। तो थैंक यू टू ऑल और आपको भी सर। See, I was very happy you brought out my daughter's book. She has been afflicted with depression, but she looked into the eyes of depression, and she, in fact, recently I asked her at a public forum, अच्छा शायद मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारी ज़िंदगी में वो एक खौफनाक रात नहीं आती तो क्या ये रोशनी जो तुम किताबों में बांध पाई हो वो बात आती? She said, no, I think that night, the dark night of the soul, which I read, was very important. So don't be scared of your darknesses. Don't be scared of your suffering days. The light that comes out from your dark days has got more glory than the light that you can find without going through darkness. Life is too intimate. It's just an ongoing drama. It never stops. But आज मुझे इसकी जो मौजूदगी से बड़ा मुझे लगा, मुझे टीटू याद आ गया। हीरो तो वो था। Yes, ये अनसंग लोग होते हैं जिनका जिक्र नहीं होता है। flowers. जिंदगी के पहिए flowers can be. आगे बैठो। जिंदगी के पहिए टीटू जैसे लोग चलाते हैं। अब जैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आ जाओ तमन्ना, तस्वीर लो तमन्ना की मेरी। आओ तमन्ना। जुबेर आजमी जी आइए। ये मास्टर क्लास कुछ चाहते थे, कुछ हो नहीं पाया। मैं अपनी सोनलों की भी निकल गया, माफ करता हूँ। और एक
मेरा ये मानना है कि फूलों की जगह वहाँ पर है जहाँ पर तोड़ के लाते हैं। तो इंसान हो या भगवान, फूलों को जिंदगी अपनी जीने की ये प्रथा को विकसित तो की जाए। मैं बात कर दूँ मीडिया On behalf of Guru Nanak Khalsa College, the Department of BMM, and the each and every blade of grass which is in this college, we all owe it to this quintessence, the saransh of this college, this vyom of this college. This fabric represents that, and may I snatch the privilege on your behalf and each one behalf. Right? Can I give it to one of the children? Because this is mine now. I can give whatever. Yes, yes. Don't let. Oh. Selfish, but sir, one for me. अनाउंसमेंट जो है एक छोटी सी करनी थी बात। एक तो भट्ट साहब की जो लाइफ है तो वो दो एक अशार आपके लिए जो है वो आवारगी और जुनून वाली बात है। और चूंकि मैं उर्दू मरकज से हूँ तो ये मुझ पर वाजिब हो जाता है कि अगर उर्दू की कुछ बात नहीं करूँ तब तो मेरे ऊपर पकड़ होगी। तो जुनून की हदों से भी आगे कहीं हम, जो ढूंढना तो देखा वहीं के वहीं हम, ये क्या हो गया अपनी आवारगी को, बहकने चले थे न बहके कहीं हम, ये हासिल हुआ अपनी शोरिदगी से, न मंजिल कहीं थी न पहुंचे कहीं हम। मुझको आपकी जिंदगी में कहीं मैं देखा था, पढ़ा था, पता नहीं आप किसी सफर में जा रहे थे, एक कोई शायर मिला था आपको और वो आप उसके शेर जो है, मैं एक हफ्ते से मैंने परवेज जी से कहा मैं ढूंढा कहीं मिला नहीं, और वो बहुत अच्छा वो शेर था। मेरे ख्याल से आपकी जितनी तस्वीरें बनी हैं उसका अर्थ जो है उस शेर में, कोई अननोन शायर आपको कहीं सफर में मिला था, मुझे पता नहीं, शायद आप मुझे इसमें मतलब अलाइन कर सकते हैं। कोई नहीं, मुशायरा नहीं, कोई मतलब एक कोई ऐसी शायर था। बहरहाल वो अगर कभी मुझको जिंदगी में वो शेर याद आया तो मैं आपको डेडिकेट कर, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। हमने जब फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की थी राजकर्ता साहब, तो उदयपुर में हम जा रहे थे, मेरा गांव मेरा देश शूटिंग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक जूनियर आर्टिस्ट थे शौकत, उनका नाम। एग्जैक्टली जी जी। उसकी मेरी जिंदगी भर बड़ी गहरी दोस्ती रही शौकत के साथ। तो रात के कुछ अंधेरे में जब सब सो गए थे और हमारी ट्रेन मुंबई से लेकर अहमदाबाद जा रही थी, वहाँ से हमको ट्रेन पकड़ के उदयपुर नैरो गेज होती थी, चांद निकला हुआ था और सब सो गए थे, और मैं मेरे पास बुकिंग नहीं थी, तो मैं 20 साल की उम्र थी हमारी, तो बैठे थे खड़े थे। हाँ, तो हमारी बुकिंग मतलब स्लीपिंग के लिए थी, और प्रोडक्शन मैनेजर तो हम ऐसे खड़े थे। एक आवाज़ हमको आई, तो आवाज़ वो गाना जो था उसने मेरे जहन पे कुछ ऐसा असर किया, क्योंकि कहीं पर जो घटने वाला था मेरे साथ वो उस गाने में था, जो मैं महसूस कर रहा था उस गाने में था,
और मैं गया उसके पास, मैं जाके बैठा और वो बैठा था, वो शराब पी रहा था, चांद पीछे निकला हुआ था और ये नैरो गेज ठीक कर, और मैं देख बैठा ना ऐसे क्या उसका वो था कि तेरी कायनात में खुदा, मेरा दिल कहीं भी लगा नहीं, जो तसल्लियां मेरे दिल को दे, मुझे ऐसा कोई मिला नहीं, तेरी कायनात में खुदा। ऐसा करता हूँ। ये तलाश तब से यहाँ पर एक ऐसे शख्स की है, मेरे दर्द इसको क्या है, मेरे दर्द दास्तां किसे आप जाके सुनाऊं मैं, कोई सुनने वाला रहा नहीं। इसलिए कहते हैं कि एक अच्छा लिसनर मिल जाए ना तो इलाज अपने आप हो जाता है। अगर डिप्रेशन के दौर से गुजरे तो एक आदमी ढूंढूं जो, या एक औरत ढूंढूं जो आपकी दिल की बात सुन ले, क्योंकि हम व्हाट्सएप पे बहुत आजकल बात करते हैं, रूबरू होकर बातें करते नहीं। जिंदा लोगों का इलाज जिंदा लोग ही करेंगे, गूगल से नहीं होगा। वो बात जो रह गई थी, ये हर साहब ने गालिबन ये आपकी जुबान से मैं 20-25 साल पहले सुना था, आज आपने उसके तह तक मुझे लाके छोड़ दिया। यही बात, यही वाक्य था। दूसरी बात, ये कॉलेज के लिए उर्दू मरकज, हम लोग तो ऐसे हैं कि हिंदी बाजार, डोंगरी, डाकपाड़ा, मदनपुरा, वो हल्के हमने बचपन से देखा है, जहाँ कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर, अली सरदार जाफरी, सज्जाद जहीर, हम जब छोटे छोटे थे तो अवामी अदारे में जो कम्युनिस्ट पार्टी का कम्यून था, वहाँ पे ये सलील दार जो है वो म्यूजिक सिखाने आते थे। बचपन में हमने देखा, मजरू साहब को हमने सुना वहाँ पर जब बहुत छोटे थे। मतलब ये कि शायरी को समझ में नहीं आती थी, लेकिन कुछ अच्छा कान को लगता है, ये फील होता था। तो ऐसे अदारे में हमने सोचा कि व्हाई नॉट रीविजिट एंड मेक समथिंग लाइक दिस। तो उर्दू मरकज कायम हुआ। उस उर्दू मरकज ने हमारी खालसा कॉलेज की रिवायत है, इन्होंने 2 साल पहले मेरे ख्याल से मोहम्मद रफी साहब का पूरा साल मनाया। कैफी आजमी का कराया, वो कहाँ है, अभिषेक, इन्होंने कैफी आजमी का रोल किया, आपको अभी लाए। और ये मुझे पता चला है कि अगले साल जो है मैं अकेला ही चला था जानिबे मंदिर, मगर लोग साथ आते गए और कानों पता है मजरू सुल्तानपुरी की जो है वो भी सदी मनाने वाले हैं। कैफी साहब की तो मनाई जा रही है। तो ये हमारा साथी, आप लोग अगर 2 मिनट आ जाए तो अच्छा लगेगा। मतलब हम लोगों ने पूरे अनएनिमस ये फैसला किया कि खालसा कॉलेज को क्यों ना पहली बार मोहसिन उर्दू अवार्ड जो है वो मिला जाए। और हमने बाकायदा हमारी कमेटी में तय किया। और ये अवार्ड तो बहुत छोटी चीज है, लेकिन आप लोग जो उर्दू के लिए, उर्दू को आपने जिंदा किया है, वो काम जो है आपका इस अवार्ड से कहीं 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 ज्यादा बड़ा है। महेश जी को कुछ लोग तो मतलब ऐसे होते हैं, हमको किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में नहीं मिलते। महेश साहब को तो बहुत पहले से, ये तो खुद एक इंस्टीट्यूशन है। वो सारी चीजें जिबिल्लत होती है, जो कायनात, ये वक्त क्या है, ये सारी चीज, ये हम जिस टाइम और स्पेस में रहते हैं, हम क्या है, ये मोमेंट क्या है, ये जिबिल्लत जो है वो महेश भट्ट साहब ने जो बात बोली है, अगर आप में वो आग और वो आप में अगर जिबिल्लत नहीं रही तो फिर आप मुर्दा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उर्दू मरकज की तरफ से। सर सर क्या कुछ कहना चाहते हैं? आज खालसा में आज पहुंचे, स्टूडेंट से मिले, इतनी इनोसेंस, इतनी शिद्दत, इतनी पाक अंदाज, इतने पाक अंदाज से मैंने कहीं पर ऐसा अपना रिसेप्शन, ज़िंदगी भर मैंने लोगों के इंस्टीट्यूशन में जाकर
बातें की हैं, मगर यहाँ पर जो महसूस हुआ is unparalleled. There's something so living and so fresh and so beautiful. तो सेशन भी हुआ, बच्चों से आपने इंटरेक्ट भी किया, क्या कुछ बातचीत हुई और कुछ यादें ताज़ा हुई आपकी? नहीं, मुझे तो वो लम्हा जहाँ पे इनकी आंखों में झांक रहा था मैं, उससे नज़र ही हटी नहीं मेरी, क्योंकि ये अतीत में कौन देखता है, बहुत हो गया अतीत पे लोग बहुत इधर आते हैं। मुझे तो ये लम्हा जो सामने महसूस कर रहा था वो अपने आप में उसने बांध के रखा था। सर 1.5 कैसी लगी आपको? वेरी गुड। मुझे उससे लगा कि देखिए आपका काम मुकम्मल तब होता है जब लोग आपके काम को गुनगुनाते हैं, उस आप लोगों के जब जहन में कहीं जाके बस जाते हैं तब जाके आप संपूर्ण होते हैं। अपने आप में आपके काम की कोई अहमियत होती नहीं। सो अभी सड़क के स्टेटस के बारे में बताइए क्या? अभी नहीं, सर थोड़ा सा